Good afternoon, students. I hope you all have enjoyed the Diwali vacations and also you have done the worksheet that was given before the Diwali vacations based on the factorization of algebraic expressions. Now, today I'll be discussing the solutions to certain questions which were given in the worksheet. Okay, so let's start with the first question, first part. First question, first part, it is 12x plus 15. Just to recall, 12x plus 15. So what we have done initially, 12x, we have to factorize it. Factorize the terms, take out the common factor. 12x, this can be written as 2 into 2 into 3 into x. Plus 15 is written as 3 into 5. So what we observe here in this, 3 is the common factor. 3 is the common factor. So we take out the common factor as 3 and then rest of the terms will write in the bracket like 2 into 2 is 4 into x, so this is 4x plus sign as it is 5, and this is the final answer for this first question, right? So this way you can solve most of the questions just by taking out the common factor. Next question which I am going to discuss, that is question number 5, first part. Question number 5, first part of question number 5, it is 14x cube, 14x cube plus 21x power 4y minus 28x square y square. So now from this, see initially you can do these questions orally as well. अब orally कैसे करना है बच्चों, आप ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है, सबसे पहले नंबर्स है आपके पास 14, 21 और 28. कौन से ऐसे नंबर है जिनके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं? So you can say 7, or 7 is the common factor initially. So we can write it like this also. 14 can be written as 2 into 7 into x into x into x. Okay? Or simply what we can do, we'll just factorize the coefficient only. And let's write it x cube as it is. X cube come as it is written. So 2 into 7 plus 21 is 3 into 7 x power 4 y minus 28. अब 7 का मल्टीपल देखिए, 7 कॉमन आ रहा है तो 7 का मल्टीपल है, यहाँ पे होगा 2 into 2 into 7 x square y square. तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो कॉमन फैक्टर है, पहले तो हमें इस नंबर्स के फॉर्म में 7 कॉमन दिखाई दे रहा है. 7 is the common factor initially, so I will take out 7 कॉमन. अब हमको देखना है जो एक्सपोनेंट्स है, जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स बचे हुए, दिस इज x क्यूब, x पावर 4 और x स्क्वायर. तो इसमें जो है x की जो मिनिमम पावर होगी वो कॉमन आएगा. तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 2, तीनों में सबसे कम पावर है 2, तो यहां पर x स्क्वायर आपका कॉमन है. अब नेक्स्ट हम वेरिएबल देखते हैं y, बट y इस टर्म में है, सेकंड टर्म में है, थर्ड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास y नहीं है, इसलिए y कॉमन फैक्टर नहीं है. सो द कॉमन फैक्टर इज 7x स्क्वायर.
अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 इज रिमेनिंग है, सो 2 आई वुड लाइक टू राइट एज इट इज। अब x क्यूब में से x स्क्वायर, x क्यूब मतलब x इंटू x, उसमें से x स्क्वायर मतलब x इंटू x कॉमन निकाल लिया, एक x आपके पास बचा हुआ है, क्या बचा है उसके लिए आप सिर्फ पावर को माइनस कर दीजिए, 3 minus 2 is 1, so remaining is only x, 2x plus 3 as it is, x पावर 4 था उसमें से स्क्वायर कॉमन निकाला, 4 minus 2 तो 2 बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचा and y is also remaining as it is. Then comes minus 2 into 2 4, अब x स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, x स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, सिर्फ बचा था y स्क्वायर, so this is y square and finally this is your answer. Okay, right? Now next question. Okay students, next question is fifth question, second part, -5 minus 10t plus 20t square. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म जब भी नेगेटिव होता है तो हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, -5 वी कैन राइट इट एज -5 एज इट इज, जो यहाँ पर 10t लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं -5 इंटू 2 इंटू t, इंटू t, सो दिस इज -10t ना। अब जो 20t स्क्वायर है दिस कैन बी रिटन एज -5 इंटू -2 इंटू 2 into t into t. So now students you can observe here, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम -5 as a common factor निकाल सकते हैं, we can take -5 as a common factor. So when we take -5 as a common factor, अब यहाँ से फर्स्ट टर्म से -5 पूरा कॉमन निकाल लिया, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी पूरा टर्म कॉमन आ जाता है तो वहां पर 1 बचेगा, तो ये 1 हो गया। अब यहां से चूंकि -5, सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव टेकन -5 as कॉमन, तो जब -5 कॉमन निकाला यहाँ पे तो यहाँ बचेगा आपके पास इंटू 1, सो इट इज 1, माइनस साइन आप जब भी कॉमन निकालते हैं तो टर्म्स के आपके साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस था तो ये हो गया प्लस, 5 into 2 is 10 तो बचा 2t, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, हमने माइनस कॉमन निकाला है तो नेगेटिव आ जाएगा, और 5 4s are 20 होता है, तो दिस इज 4t square. This is one way of answering this question, or you can only take 5 as common factor, तो केवल 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे -1 बचेगा, then -2 plus 4t square, and when we write this in the descending order of the powers of the variable, the answer can also be written as 5 into 4t square minus 2t minus 1. Okay, okay students, next question is what we have already discussed, that taking out the binomial as a common factor. तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, x क्यूब इंटू 2a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर यू कैन सी हियर, सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको 2a माइनस बी इज द कॉमन फैक्टर, 2a माइनस बी इज द कॉमन फैक्टर। अदर देन दिस, फ्रॉम दीज टू टर्म्स विच वी हैव एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से हमने अभी बताया था सेम वेरिएबल डिफरेंट पावर्स, जो लीस्ट पावर होती है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 में लीस्ट पावर है 2,
तो यहाँ पर आपका ये जो टर्म कॉमन फैक्टर आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एंड ऑल्सो दिस 2a माइनस b इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो रिमेनिंग टर्म विल बी एक्स हियर, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो एक्स पावर 1 बचेगा, साइन आपका प्लस एज इट इज आएगा। अब यहाँ से ये हम पूरा कॉमन निकाल चुके हैं, ये पूरा कॉमन निकल गया, और किसी भी टर्म से पूरा पूरा जब कॉमन निकल जाता है तो वहां पर आपके पास 1 बचेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, this is the final answer for this question. Okay, then let's see one more question, number 10. Question number 10, it is x plus 5 whole square, x plus 5 whole square minus 4x plus 5। अब बच्चों यहाँ जो x plus 5 whole square लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x plus 5 into x plus 5 minus 4x plus 5। Now we see what is the common factor. Now you can see here the common factor is, यहाँ पे देखिए बच्चों x plus 5 कॉमन है, तो x plus 5 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, रिमेनिंग इज x plus 5 माइनस, यहाँ से x plus 5 कॉमन था, 4 बचा हुआ। सो फाइनली द आंसर इज दिस इज इक्वल टू x plus 5 into x plus 5 minus 4 is 1, and this is the answer. Okay, next question is 2a plus 6b minus 3 into a plus 3b whole square। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 2a और 6b में से कॉमन फैक्टर निकालना है। So first we take out 2a and 6b, 2a is 2 into a, 6 is 2 into 3 into b, तो यहाँ से 2 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, will get here a plus 3b minus 3 into a plus 3b whole square, we can write it as a plus 3b into a plus 3b। Now from this we see the common factor is a plus 3। बच्चों a plus 3b हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, a plus 3b is the common factor। अब बचा हुआ है यहाँ पर मेरे पास 2 as it is, minus sin 3 as it is, and also a plus 3b। So finally the answer is a plus 3b to, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, minus 3a minus plus again minus, and 3 3s are 9b, and this is the final answer। Okay। Okay students, this is a very important question. Look at this question very carefully. You can see यहाँ पे जब बाइनोमियल टर्म की जब बात आ रही है कॉमन फैक्टर, तो हम देखते हैं a माइनस 3 माइनस a सेम है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है बच्चों? साइन का डिफरेंस है। साइन का डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव है, यहाँ a नेगेटिव है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम सेकेंड वाले ब्रैकेट से नेगेटिव साइन हम कॉमन निकाल लेंगे। वी कैन टेक नेगेटिव साइन एज कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट। सो व्हाट विल गेट, ये आपका दिस टर्म विल रिमेन एज इट इज, दिस इज x
a minus 3 as it is। अब यहां से जैसे ही हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, और जो माइनस साइन है हमारा वो हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर प्लस था हमारे पास, माइनस साइन कॉमन निकाला मीन्स -1 कॉमन निकाला, एंड y एज इट इज। अब जब माइनस साइन जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो a विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और 3 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, you are getting this a minus 3 as a common factor. So finally what we get, a minus 3 is the common factor। अब हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पर x plus minus will become minus y, and this is the answer। So students, just x a minus 3 plus y 3 minus a, both these expressions, binomial expressions are same, but there is a difference in sign। तो इस साइन का डिफरेंस हटाने के लिए हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। जैसे ही हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ के जो टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -a था नेगेटिव a था तो पॉजिटिव a हो गया, और पॉजिटिव 3 था तो नेगेटिव 3 हो गया। अब हमारे पास a minus 3 कॉमन फैक्टर हो गया, एंड द रिमेनिंग इज x plus minus is minus y, and this is the final answer। Again students, next is question number 15। We observe that here the binomial term is 2x minus 3y, और यहाँ पर है 3y minus 2x। अगेन द सिमिलर सिचुएशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी। Now let's see, so here from here this 12 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 into 2 into 3 into 2x minus 3y whole square है, so this we can write it as 2x minus 3y into 2x minus 3y। Now 16 will be factorized as minus 2 into 2 into 2 into 2, this is 16। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन को सेम करने के लिए आप -1 कॉमन निकालेंगे, so into -1 मल्टीप्लाइड बाय, जब जैसे ही हमने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव 2x becomes positive 2x and positive 3y becomes negative 3y। Now we'll find out the common factors। So here we see that the common factors are 2 into 2, that is 4, and also 2x minus 3y, 2x minus 3y। So the common factor is 2 into 2, this is 4 into 2x minus 3y। अब देखना बच्चों ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा हुआ है as it is 3 into 2x minus 3y, ये वाला टर्म पूरा बचा हुआ है तो 2x minus 3y। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 into 2 is 4, and when we simplify this we get the answer like this, 4 into 2x minus 3y, 3 into 2x is 6x, 3 3s are 9y plus 4, and this is the final answer। Okay, next question is x minus 2y whole square minus 4x minus 8y। बच्चों यहाँ से x minus 2y whole square इसको हम लिख सकते हैं x minus 2y into x minus 2y।
अब यहाँ पर 4x और 8y, 4 और 8 का कॉमन फैक्टर, दिस इज 4 into 1, 8 is 4 into 2, तो यहाँ से प्लस 4 हमने कॉमन फैक्टर निकाला, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x minus 2y. So finally again x minus 2y is the common factor. So the answer is x minus 2y. Common factor, यहाँ पर ये वाला टर्म पूरा बाइनोमियल बचा हुआ है, x minus 2y and plus 4, and this is the answer. Okay students, so this is a slightly different question, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 1, 2 और 3 टर्म्स है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हम ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर निकालेंगे. So here we will write this y square as it is. यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, minus xy into 1, that is minus xy. Minus minus will become plus, और xy into x हो जाएगा x square y minus x cube. अब हम ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर निकालते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दीज टू टर्म्स. फ्रॉम दीज टू टर्म्स द कॉमन फैक्टर इज y. y कॉमन निकाला, y स्क्वायर में से जब y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा y माइनस यहाँ से x बची, प्लस अगेन द सिमिलर सिचुएशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, x स्क्वायर और x क्यूब, तो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है, तो यहाँ पर x स्क्वायर आपका कॉमन आएगा, x स्क्वायर विल बी द कॉमन फैक्टर. So the common factor from these two is x square. x स्क्वायर बच्चों कॉमन हो गया, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है y माइनस x क्यूब में से x स्क्वायर जब कॉमन निकाल लिया तो 3 minus 2 is 1, तो x will be remaining here. x will be remaining. Minus x. Now you see y minus x is the common factor. तो बच्चों y minus x हमने कॉमन लिया. अब हमारे पास यहाँ पर बच रहा है y plus sin x square, and this is the answer. Right? So next question is question number 24, ax plus by whole square plus bx minus ay whole square. बच्चों यहाँ पे जो दो टर्म्स है दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ऐसी सिचुएशन में हमें इसको पहले एक्सपैंड करना है. वी हैव टू एक्सपैंड दिस यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b whole square. तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे. विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b whole square. So with the help of that we'll get this a square means a square x square plus 2ab होता है तो 2abxy 2abxy plus b square y square. अब इसको हम a minus b whole square से एक्सपांड करेंगे. So this is plus b square x square minus 2abxy plus a square y square. So with this these two terms will get cancelled. ये दो terms हमारी cancel हो गई. अब हम देखिए यहाँ से ये दो terms से यहाँ से x square common निकालेंगे. We'll take out x square as a common factor from these two terms, and from these two terms y square will be the common factor. तो यहाँ दो terms से हमने x square common निकाला. So we get x square common, a square plus b square plus यहाँ से y square common निकाला. Again we have a square plus b square.
square. Now this whole, that is a square plus b square, is the common factor. So here we get the answer as a square plus b square into x square plus y square, and this is the answer. Right? Next is question number 26. Now from these two terms, first two terms we see. From the first two terms, x square is common. x square common निकाला. यहाँ पे बचेगा हमारे पास x minus 3. अब देखिए यहाँ पे x minus 3 है बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी x minus 3 है. x और 3 में से कॉमन फैक्टर जो आएगा that is only 1 plus 1 x minus 3. There is no common factor in x and 3. x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे x into 1 और 3 को हम लिख सकते हैं 3 into 1. तो यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए हमने प्लस 1 कॉमन निकाला, and that is x minus 3. Now here we have x minus 3 as a common factor. तो ये बच्चों x minus 3 common factor हो गया. This is x square plus 1 and this is the answer. So once again, question number 27. Now again you see the terms which are written, there is no common factor. So what we need to do? First we simplify the brackets, rearrange the terms, and then take out the common factor. So what we need to do here? We have to multiply first. Multiply करते हैं बच्चों. abx square प्लस aby स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई. माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई. अब हम रीअरेंजमेंट करेंगे. रीअरेंजमेंट करके कॉमन फैक्टर निकालना, क्योंकि यदि हमने ऐसे ही कॉमन निकाला तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा. So we have to rearrange the terms. ab x square minus a square xy plus ab y square minus b square xy. Now we take out the common factor. अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, ये जो दो टर्म्स हैं a square, तो a कॉमन हो गया, b is, अब यहां से x स्क्वायर और x, तो x कॉमन है. यहां पे हमारे पास a और x कॉमन निकाल लिया, b बचा हुआ है b. x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकाला, 1x is as it is remaining, माइनस a स्क्वायर में से a कॉमन निकाला था, तो यहां पर a बचेगा. x ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, y बचेगा bx minus ay. Okay, similarly from the next two terms also. अब यहां से b और b स्क्वायर, तो b is common. अब यहां देखिए बच्चों, पहले y वाला x वाला टर्म पहले है, y वाला बाद में, तो यहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, so that the sign changes, क्योंकि यहां पे x का टर्म नहीं, यहां पे x का टर्म है, ये पहले आना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से we'll take out माइनस साइन एज द कॉमन फैक्टर. तो बच्चों जब माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला, और कॉमन फैक्टर क्या है, b एंड y ऑल्सो. अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वायर में से b कॉमन निकाला था, तो b बच गया एंड x. ये टर्म नेगेटिव हो गया, माइनस a बचा हुआ है a y. So now we see bx minus ay is the common binomial factor. So the answer is bx minus ay into ax
minus b1, right? So students, this way you can complete the worksheet. Some of you have already done. So complete the worksheet. Thank you. Have a nice day.